Will anyone define what is unit cell? The smallest repeating structure in a lattice diagram or formation is called a unit cell. Very good. Smallest repeating structure throughout the crystal lattice is called a unit cell, no doubt about it. Unit cell is a part of crystal lattice, or you can say space lattice. In a space lattice or in a crystal lattice, the smallest repeating structure is called a unit cell. That is what we have seen. And the unit cell is obtained by adjoining the nearest particles. We get the unit cell over here. And how the crystal structure and crystal lattice is formed, we know very well. There are two things, that is lattice and basis. So crystal lattice is a three-dimensional arrangement of the particle is called a crystal lattice. And what is the crystal basis? We have seen adjoining the nearest point. The way we join the nearing points or adjoining the nearest point, what we get is nothing but the basis. So basis and lattice points makes the crystal lattice or makes the crystal space lattice, you can say. So that is what we have seen in yesterday's lecture. As well, also we have seen mathematician Bravis has calculated how many types of unit cells are possible. And we also seen the typical diagram of the unit cell. Unit cell has edge length A, B, and C, denoted by A, B, and C. And unit cell has also bond angles denoted by alpha, beta, and gamma. Yesterday also we have seen which is called alpha, which is called beta. ये भी हमने calculation में वहाँ पे discuss किया था, right? So hope so everyone is able to recall that. And based on that, we know very well. We got mathematician Bravis calculated how many types of possible unit cells are there based on the edge length and bond angle, and he found that mainly there are 7 types of unit cell. Mainly there are 7 types of unit cell. Just a second. So mainly because there are 7 types of unit cell as cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, rhomboidal, and hexagonal. These are the 7 main types of unit cell. But these unit cell has some subtypes, and these subtypes are how many subtypes are possible? There are 4 subtypes are possible, and these 4 subtypes over here, that is, you can say these are known as a primitive or simple unit cell, also known as a body-centered unit cell, space-centered unit cell, and end-centered unit cell. So these are the subtypes which are possible. Based on edge length and bond angle, we got 7 types of unit cells, and we have the subtypes. तो ये याद रखिएगा कि main types 7 है और उनके subtypes 4 होते हैं. हर एक में अलग-अलग types हो सकते हैं उसके अंदर possible. So ये जो है, that is, you can say primitive, body-centered, face-centered, end-centered. ये वापस मैं थोड़ा सा दोहराता हूँ ताकि हम लोगों को 7 unit types of cells और उनके subtype मिला के 14 types of unit cells होते हैं. Total 14 types of unit cells, but mainly 7 और उनके subtypes. कुल मिला के there are maximum 14 types of unit cells possible in any of the crystalline solid. ये जो subtypes है, ये 4 subtypes, these are here. Primitive or simple unit cell का structure ये है, as like we can say. Here it has edge length and bond angle, whereas it has 8 corners. So 8 particles are present on the 8 corners of the this cuboidal shape, or you can say this unit cell. Baki rest, no particle is present anywhere, and that's why this is called a very simple or primitive unit cell. Whereas when we talk about this BCC, body-centered cubic unit cell, so in this body-centered cubic unit cell, we have particle at the 8 corners of the cube. Whereas, as the name suggests, one of the particle is present in the body of this unit cell. And that's why it's called a body-centered unit cell. 8 corner पे 8 particle तो है ही है, but एक particle body में इसलिए body-centered unit cell आ जाता है. When we comes to this third one, that's called a face-centered unit cell. Here, 8 corners पे 8 particles, and each face of this unit cell has one particle, has the presence of one particle. So being अगर हम ऐसा मानते हैं कि this is cube or cuboidal shape, तो इसके अंदर this cube has a 6 faces. This is a top face, bottom, left, and right. You can say तो accordingly होता है. So that's why हर face पे आप particle दिखाया जाता है. Upper, bottom, left, right, front, and back. या फिर front and back ऐसे कर सकते हैं. This is what we can say cluster. So this is face centered. नाम से पता चलता है कि हर face पे एक particle होता है. नाम से पता चलता है बॉडी के अंदर एक पार्टिकल होता है. और यहाँ पर जो बात करते हैं दिस इज से एंड सेंटर, आल्सो कॉल्ड बेस सेंटर. इसके अंदर कॉर्नर पे एक पार्टिकल्स है और टॉप में और बॉटम में. इसे बेस कह सकते हैं हम लोग. तो बेस पे एक पार्टिकल तो उसके टॉप में भी एक पार्टिकल होता है. दिस इज द सब टाइप्स ऑफ
subtype unit cells possibility which has been calculated by mathematician Bravis. ये चार टाइप के पॉसिबल होते हैं और मिलते भी हैं. ओके, अभी वापस मैं उस टॉपिक के ऊपर चलता हूँ, वो आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा इसके अंदर का कंसेप्ट. अब देखिए, when we talk about types of unit cell, so mainly there are 7 types of unit cell. Mainly there are 7 types. तो देखिए, number 1, this is called as your cubic unit cell. Cubic unit cell. So how we are going to separate this cubic unit cell? जैसे मैंने कल आपको डायग्राम बताया था कि यूनिट सेल का डायग्राम होता है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, दैट इज A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, which is equal to 90 degree. This is very important conditions of cubic unit cell के conditions है. ओके, तो एक चार्ट ही बनाते हैं, बेटर रहेगा चार्ट बनाते हैं. ओके, so this is, you can say, unit cell. Here is length, here bond angle. तो अब देखिएगा, सबसे पहला जो है वो है क्यूबिक यूनिट सेल. अभी हर टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार क्यूबिक लिखो तो समझ में आता है. यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके अंदर एज लेंथ की बात की हमने, A is equal to B is equal to C. यहाँ पे अल्फा is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. This is the condition for this cubic unit cell. दूसरा जो टाइप देखा हमने, that is you can say टेट्रागोनल यूनिट सेल. उसका कंडीशन है A is equal to B which is not equal to C, और यहाँ पे अल्फा is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. ये कंडीशन सिमिलर. तीसरा जो है, that is you can say here ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल. ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या आता है आपको कंडीशन, A is not equal to B is not equal to C, but here alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. ऐसा कंडीशन आपको मिलता है. नेक्स्ट, फोर्थ आता है मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में A is not equal to B is not equal to C, but alpha is equal to beta, but gamma is not equal to not equal to 90 degree. Alpha is equal to beta is equal to gamma, but not equal to 90 degree. ऐसा कंडीशन मिलता है हम लोग. That's what we can see here. फिफ्थ में हम लोगों को मिलता है ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में मिलता है A is equal to B is equal to C, मतलब is not equal. A is not equal to B is not equal to C. Here alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree. ट्राइक्लिनिक में कोई भी किसी के साथ इक्वल नहीं है. That is the condition what we get here. Sixth, रोम्बोहेड्रल में A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, which is not equal to 90 degree. यहाँ पे alpha is equal to beta, gamma is not equal to 90 degree, ऐसा कंडीशन आपको मिलता है. सेवंथ में हेक्सागोनल में मिलता है आपको A is equal to B is not equal to C, alpha is equal to beta which is equal to 90 degree, but gamma is equal to 120 degree. ऐसा आपको मिलता है. So this is the condition what we get here for all these. So now see, जैसे मैंने कल बताया आपको कि unit cells, there are mainly 7 types of unit cells, और mathematician Bravis calculated how many types of unit cells are possible, and these types of unit cells depends upon this age length and bonding. So these are the main 7 types of unit cells. These are the main 7 types of unit cells. अभी सवाल आता है, ये जो 7 मेन यूनिट सेल्स है उसके सब टाइप्स होते हैं जो अभी हमने देखे थे. 4 टाइप्स सब टाइप देखे. नंबर 1 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर और एंड सेंटर. वो इसके अंदर मिलता है. तो क्यूबिक के अंदर अगर देखेंगे तो क्यूबिक के अंदर हम लोगों को मिलते हैं 3 टाइप. टेट्रागोनल के अंदर मिलते हैं 2 टाइप. ऑर्थोरोम्बिक के अंदर मिलते हैं हम लोगों को 4 टाइप. मोनोक्लिनिक के अंदर मिलते हैं 2 टाइप. ट्राइक्लिनिक में मिलता है 1, रोम्बोहेड्रल में मिलता है 1 और हेक्सागोनल में मिलता है आपको 1. सो दीज आर व्हाट, ये हम लोगों को मिलता है. सो कौन से 3 मिलते हैं? हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो क्यूबिक के अंदर मिलते हैं. टेट्रागोनल की अगर बात करेंगे तो टेट्रागोनल में 2 ही मिलते हैं. दैट इज यू कैन से
प्रिमिटिव एंड पीसीसी। इसके अंदर बात करेंगे ऑर्थोनोमिक में तो चारों भी मिलते हैं ऑर्थोनोमिक में। दैट इज यू कैन से सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। मोनोक्लिनिक में मिलता है आपको प्रिमिटिव, सिंपल एंड एंड सेंटर। तो ये इकलौता है मोनोक्लिनिक जिसके अंदर आपको प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर मिलता है। यहाँ पर भी एंड सेंटर। ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे तो उसमें एक ही मिलता है जो सिंपल है, रोमोहेड्रल में भी एक मिलता है सिंपल है, और हेक्सागोनल में भी एक ही मिलता है, लेट्स कॉल इट सिंपल वन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर के ऊपर आपको शायद वो दिखाई देगा, जस्ट मिनट। ओके, आई एम सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट बीन एबल्ड बाय द एडमिन। तो अगर एडमिन मुझे सुन रहा है तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। यस तुषार सर, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस तुषार सर, नो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन एंड दैट्स व्हाई एवरीवन विल। तो कल परसों के लेक्चर में हम देखेंगे स्क्रीन शेयरिंग करके डिसेबल करके उसे। सो अभी मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि दीज आर द यूनिट सेल्स। इस यूनिट सेल्स के अंदर तो क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर हमको तीन टाइप मिलते हैं जो हमने देखे हैं। टेट्रागोन के अंदर ये मिलता है। अभी सबके डायग्राम अगर देखेंगे हम तो डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के लगते हैं, द हायर डिफरेंट, but unless and until we write these conditions we won't be able to differentiate between the diagram के अंदर हम लोग differentiate नहीं कर पाएंगे। that is a simple problem with this all these unit cells। तो ये सारे unit cells के डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे मैंने कि typical unit cell का डायग्राम ड्रॉ किया था। typical unit cell क्या है हमारा? suppose this is our typical unit cell। ये हमारा typical unit cell है। so this is one। ये हमारा typical unit cell जिसके हम बोल सकते हैं here is the particle at 8 corners and there are 8 particles, okay, and we are saying this is nothing but the A, this is nothing but the B, and this side is nothing but the C, and this is nothing but the alpha, this bond angle is nothing but the beta, this bond angle is nothing but the gamma। so ये हमने देखा, this is typical unit cell। यही यूनिट सेल जब क्यूबिक में आता है तो 100% A is equal to B is equal to C, A is equal to B is equal to C आता है, बॉन्ड एंगल ऐसा है सबका। और when टेट्रागोनल के अंदर आता है तो A is equal to B, A is equal to B, but C is either more or less than that। A अगर मानो 10 सेंटीमीटर का है तो B 10 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन C 10 से कम या 10 से ज्यादा हो सकता है। This is what we can say for टेट्रागोनल। ऑर्थोनोमिक में A is not equal to B is not equal to C। A, B, C तीनों एज लेंथ अलग है, मतलब किसी का 5 सेंटीमीटर है, कोई 7 सेंटीमीटर है, तो कोई 9 सेंटीमीटर है। तीनों एक जैसे नहीं हो सकते ऑर्थोनोमिक के अंदर, बॉन्ड एंगल वैसे है। मोनोक्लिनिक के अंदर यही कंडीशन लाइक दैट, अलग अलग तरीके से। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स बनते हैं, और खास करके एग्जाम ओरिएंटेड ये डायग्राम पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ क्यूबिक पूछा जाता है, और क्यूबिक के अंदर क्या तीन आते हैं, दैट इज यू कैन से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जो हमने कल ऑलरेडी ड्रॉ किया। कल हमने जो तीन ड्रॉ किए थे, 4 ड्रॉ किए थे, उसमें से पहले 3 कंसीडर करेंगे तो क्यूबिक के अंदर आते हैं। और इस चैप्टर में हमें क्यूबिक ही स्टडी करना है। ये जो है these are not the part of our 12th standard studies, these are part of the higher study। तो इस चैप्टर में आगे हमें सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल स्टडी करना है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल हमें स्टडी नहीं करना है। गॉट इट? सो दिस व्हाट वी आर हियर। उसके काफी अच्छे डायग्राम थे मेरे पास, बट आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। सो कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में हम सबको बोलेंगे जस्ट डिसेबल माय स्क्रीन शेयरिंग, और अकॉर्डिंगली फिर स्क्रीन शेयरिंग करके हम लोग वो डायग्राम देखेंगे। क्लियर? So let's move। Now, though there are mainly 7 types of unit cell, and there are 4 possible subtypes: primitive, body centered, face centered, and end centers। और ये जो 7 टाइप्स है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल, out of that here onwards we are going to discuss only cubic unit cell। so we discuss here cubic unit cell। और cubic unit cell का कंडीशन आप अच्छी तरह जानते हो। cubic unit cell के अंदर कंडीशन है A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma, which is equal to 90 degree। this is very important condition for this cubic unit cell, no doubt। हम अच्छी तरह जानते हैं।
इसके अगर जैसे मैंने बताया कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसके जो है 3 सब टाइप्स होते हैं। ओके, तो पहला जो है फर्स्ट इज वी हैव टू डिस्कस, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आल्सो नोन एज SCC, इट इज नोन एज SCC। दूसरा जो डिस्कस करना है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिससे कहा जाता है BCC। और तीसरा दैट इज यू कैन से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, व्हिच इज आल्सो नोन एज FCC। इस तरीके से वो जाना जाता है, ठीक है। सो क्यूबिक यूनिट सेल का कंडीशन है A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree, और क्यूबिक यूनिट सेल is divided into 3 subtypes। पहला जाना जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इनका डायग्राम आप जानते हैं, मैं स्मॉल डायग्राम यहाँ पे निकाल देता हूं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स, जो आपको यहाँ पे मिलता है, कॉर्नर्स में मिलता है। BCC के अंदर हमने देखा है BCC में कॉर्नर पे तो पार्टिकल है, एट द सेम टाइम कॉर्नर के अलावा पार्टिकल बॉडी में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द FCC, डायग्राम ड्रॉ करने पड़ते हैं, थोड़ा सा आदत रखिएगा। सो ये जो फेस सेंटर्ड है, तो ये अपर फेस पे एक पार्टिकल, लोअर फेस पे एक पार्टिकल, लेफ्ट पे, राइट पे, और ये फ्रंट पार्टिकल जो इसे कंसिडर करते हैं, और ये बैक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। सो 3D में अगर इमेजिन करेंगे, इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन मैटर्स अ लॉट। 3D में थोड़ा इमेजिन करते हो तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिकॉल और रिमेंबर वेल। ये चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉर्ड करना थोड़ा सा इजीली जाना, हमें थोड़ा सा इजी होगा। So try to imagine 3D diagrams। तो ये जो है ये क्यूब डायग्राम्स है, और इसे 3D में इमेजिन करने की कोशिश करिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी इस यूनिट सेल के बारे में 4 टाइप की इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। नंबर 1, दैट इज यू कैन से मेकिंग ऑफ यूनिट सेल। नंबर 2, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर 3, coordination number, and number 4 is density. How much is the density of this unit cell? ये अब देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आगे का जो हम जो कोर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे कोर कॉन्सेप्ट के अंदर है क्या कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विच इज अ टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, और इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 4 हेड्स के अंदर डिस्कस करना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को ये चारों हेड्स के अंदर डिस्कस करना है। नंबर 1, मेकिंग ऑफ दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वहां पे वर्ड बदलेगा, मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज SCC। नंबर 2, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 3, coordination number in simple cubic unit cell, and number 4, what is the density in simple cubic unit cell, or simply you can say how much space is required in case of simple cubic unit cell. Similar heads are applicable to body cell। तो इसी के अंदर आपको स्टडी करना है कि मेकिंग ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और सिमिलर वे हियर फॉर द FCC, वापस से चारों हेड FCC के लिए डिस्कस करें। अब ये बताने का कारण ऐसा है, दिस इज द फ्लो व्हाट आई टीचर्स और व्हाट आई वुड लाइक टू डिलीवर। बुक के अंदर जाएंगे तो आप कैसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा, बुक के अंदर ये थोड़े से टॉपिक आगे पीछे है, पहला मेकिंग आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, फिर दूसरा कुछ टॉपिक आएगा, फिर डेंसिटी आएगा, इस तरीके से। सो इट वोंट बी इन दैट प्रॉपर फ्लो। सो आई वुड लाइक टू डिलीवर हियर दिस मैनर। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों हेड्स इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर अच्छी तरह समझते हैं हम लोग, तो बाकी दोनों के लिए बहुत इजी बनता है, तो व्हाट इज माय अपील टू यू
while studying simple cubic unit cell in this manner, attend it well. Once you get this simple cubic unit cell, then getting body centered cubic unit cell and face centered becomes easy. Those who won't get simple cubic unit cell 100% face the difficulty with this BCC or FCC. So that's why attend well. Simple cubic unit cell के बारे में चारों हेड डिस्कस करते हैं. पहला हेड है मेकिंग ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंसिटी. इसी हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि एक यूनिट सेल का डायग्राम 3-3, 4-4 बार ड्रॉ करना पड़ता है. बेटर हम एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके साथ ये सारे हेड्स हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह. ठीक है. सो ये दोनों हटा देते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग. ठीक है. अभी हमें देखना है मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. उसके अंदर सबसे पहला हेड आएगा मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. When we talk about the simple cubic unit cell, we have this diagram. ये diagram हमें draw करना है. That is what we are drawn like this one. Making में क्या दिखता है इसके अंदर? Making में आपको दिखता है कि this is a simple cubic diagram. It has 8 particles on the 8 corners of the cube. So simply बोल सकते हैं cube has 8 corners. Cube has 8 corners. There are 8 particles. There are 8 particles at 8 corners. There are 8 particles present at the 8 corners of the cube. As well, how many faces? It has 6 faces and it has 12 edges. So that is what we can say regarding simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell के बारे में इतनी information है. How we can make the simple cubic unit cell? So it has 8 particles present on the 8 corners of the cube. So it's very important. Being this cube has 8 corners, there are 8 particles present on the 8 corners of this cube. Whereas this cube has 6 faces and 12 edges. So these are the edges. इस तरीके से जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं उसे एज कहा जाता है. So अब देखिए, these are the different faces. और ये फेस जहाँ पे मिलते हैं उसे एज कहा जाता है. So that is, you can say this is edges. तो यहाँ पे एज मिलता है, यहाँ फेस और ये फेस. So there are 12 edges. This is, you can say, simply making of simple cubic unit cell. उसका एक 3D डायग्राम भी आता है. ये बनता है एक्चुअली पार्टिकल से. कैसे बनता है पार्टिकल से आप देखिए. Suppose हमारा पार्टिकल चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो. Now this is the first particle, the second particle. दोनों एक दूसरे को टच नहीं है पार्टिकल. इस पार्टिकल का सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पर. इसके ऊपर एग्जैक्टली एक पार्टिकल होता है और इसके ऊपर भी एग्जैक्टली एक पार्टिकल होता है. So this हो गया, ये इसका सेंटर है और ये यहाँ पे टच होते हैं. ओके, लाइक दिस. अभी देखिए, ये पार्टिकल्स के मैं अगर सेंटर्स कनेक्ट करता हूँ, adjoining the centers, these particles makes the lattice points or lattice. और बेसिस क्या होता है, उन्हें जब कनेक्ट करते हैं तो बेसिस होता है. This is called as basis. So we have connected them to form basis. So there were 4 particles. 4 particles थे, तो हम लोगों को क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, ये हमें स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर मिला, स्क्वायर लाइक. लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स 8 होते हैं ना. इस पार्टिकल के पीछे एक पार्टिकल है, इसके पीछे है यहाँ पे 4 पार्टिकल. ये तो हम 4 निकाल. अभी इसके पीछे एक पार्टिकल निकालना पड़ेगा, तो इसके पीछे निकलता, आगे निकालेंगे दिखाई नहीं देगा. पीछे निकालूंगा तो इस तरीके से पार्टिकल होगा. इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा आपका, उतना इजी आपको समझेगा. So hope everyone is able to imagine accordingly. अभी कितने पार्टिकल दिखाई देते इसके अंदर? इसके अंदर टोटल आपको 8 पार्टिकल दिखाई देते. ये पार्टिकल इसके पीछे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके पीछे एक पार्टिकल है. सब तो नीचे के लेयर में 4 पार्टिकल है, उसके अलावा एग्जैक्टली 4 पार्टिकल्स है. ठीक है. और पीछे के पार्टिकल के सेंटर में कनेक्ट करता हूं लाइक दिस. ये होगा. Is this a cube what we get here? यहाँ पर जो हमने क्यूब निकाला है वो यहाँ पे मिलता है. This is called as making of simple cubic unit cell. So making में there are 8 particles on the 8 corners of this cube. It has 6 faces, 12 edges, and this is the making of the simple cubic unit cell. Clear? Now, दूसरा जो point है, that is number of atoms. Number of atoms in this SCC, simple cubic unit cell. How many number of atoms are present in this simple cubic unit cell? कितने atoms present है? Superficially देखा जाएगा, ऊपरी लेवल पर देखा जाएगा, तो यहाँ पे दिखता है कि there are 8 corners and 8 particles are present on the 8 corners of this cube. 8 particles are present on the 8 corners of the cube. But यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं, तो we have connected the center. Center connect करने के बाद ये जो यूनिट सेल का बॉर्डर है, ये यूनिट सेल का बॉर्डर है. यूनिट सेल के बॉर्डर के अंदर के पार्टिकल अलग है और ये जो पार्टिकल यूनिट सेल के बॉर्डर के बाहर है, बॉर्डर के बाहर है. सो
भले ही ये कॉर्नर वाला मैं एटम की बात करता हूँ, दिस इज द एटम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, ये कॉर्नर का एटम, दिस कॉर्नर का एटम, इसका थोड़ा सा ही पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आता है, जो यहां से लेकर यहां तक इतना ही आता है, इतना ही पार्ट आता है, इतना ही पार्ट, बाकी का पार्ट इस यूनिट सेल के बाहर है। सो वो पार्ट यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, वो यूनिट सेल का है। हम लोग भी पुणे सिटी में रहते हैं, फ्लैट होता है, मानो हमारे बिल्डिंग में फ्लैट है और बीच में दीवार है, दीवार की तरफ दूसरा किसी का फ्लैट है, दूसरे किसी की गैलरी होती है, दीवार तक हमारे फ्लैट का एरिया होता है, दीवार के आगे उनका होता है, भले ही दीवार हमारा कॉमन हो, लेकिन दीवार के उस तरफ का एरिया दूसरे फ्लैट का है, इस तरफ का एरिया हमारे फ्लैट का। उसी तरीके से ये यूनिट सेल के अंदर ये जो पार्टिकल है उसका बहुत छोटा सा पार्ट इस यूनिट सेल का पार्ट है, बाकी सब यूनिट सेल के बाहर है, बाकी सेल के बाहर। और इसी कारण से ये जो कॉर्नर का एटम होता है, इस कॉर्नर के एटम का इस यूनिट सेल के अंदर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। द रीजन बिहाइंड दैट एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा मैं आपको, जो आपको सब इजी होगा डायग्राम के साथ। ये आपको क्यूब दिखाई देता है सबको, सबको क्यूब दिखाई देता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्टिकल तो है जरूर, ये जो कॉर्नर्स है सारे कॉर्नर पे पार्टिकल है यहाँ पे, और ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मैं उसे अभी स्पेस लैटिस में कन्वर्ट करता हूँ। स्पेस लैटिस क्या करता हूँ मैं, ये जो लाइन है वो डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ओके। डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर भी लाइन कट करता हूँ, लाइक दिस वन। आप देखिए हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू और मोर लाइन देयर लाइज अ पार्टिकल। याद रखिएगा, एवरी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइंस, वहां पे आपको एक पार्टिकल दिखाई देता है। आप बोलिए इसके अंदर कितने यूनिट सेल्स दिखाई देते हैं, कितने यूनिट सेल्स दिखते हैं? 3 into 3 9 यूनिट सेल्स, ओके। मतलब एक बड़ा वाला आपने कैलकुलेट किया है ना, सेम साइज के कितने दिखाई देते हैं, सिमिलर साइज के? सिमिलर साइज के कितने यूनिट सेल दिखाई देते हैं? सब एक जैसे, मतलब यूनिट सेल तो सिमिलर होता है ना, तो सेम यूनिट सेल्स आर रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस। तो ऐसे कितने दिखाई देते हैं इस पूरे लैटिस में, स्पेस लैटिस में? 8, 100% 8 दिखाई देते हैं। Everyone agree with this? This is the space lattice. yes Yes, because we have the lattice and we have the basis, so we have connected, and this is the crystal lattice of space lattice. Now, unit cell का definition देख चुके हैं हम लोग. It is the smallest repeating structure throughout the crystal lattice. तो इसके अंदर देखिए कि मैं छोटा सा इस कॉर्नर का ये यूनिट सेल में यहाँ पे लगाना चाहूंगा, लाइक दिस, ये रह गया था ये वाला। देखिए दिस इज, ये फ्रंट का यूनिट सेल दिखाई देता है, ये फ्रंट का वन, उसका फ्रंट ये है, उसके पीछे 2 है, उसके ऊपर वापस 2 आते हैं, आते कि नहीं आते? तो अभी ये अगर पार्टिकल में देखता हूँ, ये पार्टिकल, ये सेंटर में पार्टिकल, ये पार्टिकल एक ही पार्टिकल है वहां, वो कितने यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है? द पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर लाइक दिस, यहां कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है? so 1 8 वेरी गुड, 1/8 इज द कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल। बट मेरा क्वेश्चन था कि ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है सेंटर में, वो पार्टिकल 8 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पे 8 यूनिट सेल दिखता है, यहाँ पे फ्रंट में 1, इसके बाजू में 1, उसके पीछे 2 और ऊपर 4, तो कुल मिला के 8 यूनिट सेल। और ये जो सेंटर का पार्टिकल है, चारों यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ये सेंटर का पार्टिकल 4 यूनिट सेल, जैसे कि अगर मैं ऐसा पिक्चर ड्रॉ करता हूँ 2D का, सी ये 2D का मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। अभी ये पार्टिकल हर जगह पार्टिकल है, मानो ऐसा, ओके। अभी ये मैंने 2D डायग्राम निकाला, तो ये पार्टिकल कितने स्क्वायर में कंट्रीब्यूट करता है, कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है? ये पार्टिकल चारों में करता है। ये पार्टिकल इसका भी हिस्सा है, 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 मतलब ये पार्टिकल चारों यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। तो उसी तरीके से
इसके पीछे मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। और उसके आगे भी उस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये डायग्राम वही है, इसके आगे ड्रॉ करेंगे वही बनता है। तो ये पार्टिकल है, तो सेंटर का जो पार्टिकल है 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है, 8 यूनिट सेल। इसीलिए इस पार्टिकल का 1 यूनिट सेल का अंदर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। रीजन में अंदर अगर हम लोग एक एप्पल 2 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं तो एक को कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/2, हाफ हिस्सा मिल रहा है। तो एक पार्टिकल अगर 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1/8 मिलेगा। मतलब एक एप्पल 8 लोगों को इक्वली डिवाइड करना है तो एक बंदे को 1/8 हिस्सा मिलेगा, 1/8 पार्ट मिलेगा उसका। सो दिस इज व्हाट वी कैन से हियर। तो इसके अंदर यही है, इसके अंदर यही है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये वाला जो यूनिट सेल है ये ऐसे दिखाया मैंने इसके अंदर। अब इस यूनिट सेल का देखिए, ये अगर मैं हटाता हूँ ये वाला सब स्ट्रक्चर, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो दिस इज द यूनिट सेल। तो मैं अगर मानता हूं कि ये फ्रंट का कॉर्नर है, ये फ्रंट का कॉर्नर है, तो ये देखिए ये वाला पहला यूनिट सेल है इतना। तो वो दिस इज 1/8 पार्ट, दिस इज 1/8 पार्ट, दिस इज 1/8 पार्ट ऑफ दैट यूनिट सेल, इसका इन 1/8 पार्ट। सो फ्रॉम कॉर्नर्स 1/8 पार्टिकल आता है। कॉर्नर का पार्टिकल 1/8 इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, देयर आर 8 कॉर्नर्स, हर क्यूब पे 8 कॉर्नर्स। अगर मैंने माना कि ये तो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का यहाँ पे 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1/8 इसका, ये 1/8, इसका 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, सारे जितने पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका 1/8। तो टोटल कितना होगा, 1/8 into 8 which is equal to 1. So this is 1 atom or 1 particle, 1 particle. इसका मतलब है simple cubic unit cell is made up of only 1 atom or only 1 particle. Only 1 atom or 1 particle. The reason behind that, simple cubic unit cell has 8 corners and there are 8 particles present on the 8 corners of this cube. But the thing is that the particle present on the corner has only 1/8 contribution. कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उसका सिर्फ 1/8 इतना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर है। और दैट्स व्हाई 8 कॉर्नर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/8 by 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो मिलता है हम लोग 1 एटम। तो दिस यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। रेस्ट जो पार्टिकल्स है दूसरे यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। सो एक यूनिट सेल के अंदर उनका उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। सो दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो वी आर हियर विद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पहले देखा मेकिंग, फिर देखा नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। और लिखा कैसे जाता है, from corners 1/8 into 8, contribution is 1/8 or 8 corners, that's why 1/8 into 8 is equal to 1. So only 1 atom is present. इसका coordination number और इसका density कल के या परसों के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। Till then, thank you much, bye bye.